Welcome, dear students. Uh, in today's lecture, we will study the electrical conductivity of semiconductors. तो पहले तो हम इसमें कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. हम एक टर्म भी डिफाइन करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड मोबाइलिटी. Then we shall see how conductivity of semiconductors depends on temperature. So we shall discuss the temperature dependence of conductivity, जिसको हम sigma से denote करते हैं. And finally, we shall draw a graph of natural log of conductivity of semiconductors versus reciprocal of temperature. So let us start. सेमीकंडक्टर्स अगर एक्सट्रिंसिक हो तो उसमें होल्स भी होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट टू मेक आवर जॉब सिंपल वी शैल फर्स्ट कंसीडर a semiconductor which is strongly n type, यानी कि इसमें होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है as compared to the concentration of holes, कि हम holes की concentration को neglect कर सकते हैं. We can treat कि इसमें holes हैं ही नहीं. तो हमने electrical conductivity के लिए already एक expression derive की है, sigma equals ne square tau by m. तो चूंकि हम यहाँ पे electrical conductivity स्टडी कर रहे हैं ड्यू टू ओनली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दिस कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हमने सिग्मा के साथ यहाँ पे सबस्क्रिप्ट n लगाया है. दिस इज द कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली. सो n इज द फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन. Small n means number of free electrons per unit volume. E is the electronic charge. Tau n is the relaxation time of electrons, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स होने के लिए कितना टाइम मिलता है. एंड mn is the mass of free electron, लेकिन उसके ऊपर मैंने एक सितार रखा है and this denotes effective mass. ये भी हमने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में मूव करता है, इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ए पीरियोडिक पोटेंशियल. तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होता है एंड दैट चेंज्ड मास इज कॉल्ड इफेक्टिव मास. और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में हमने ये भी स्टडी किया कि ये इफेक्टिव मास इट कैन बी लेस देन द फ्री इलेक्ट्रॉन मास, it can be greater than the free electron mass, and it can be even negative. तो semiconductors में what can be a typical value of conductivity? तो we will substitute values. तो free electron concentration for semiconductors is about 10 raised to power 21 or 10 raised to power 22 per cubic meter. Relaxation time is about 10 raised to power minus 12 seconds. E to electronic charge है ही, E that will be 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, और फिर रह जाता है mn star. तो we will take it 1 by 10th of the free electron mass, यानी कि 0.1 टाइम्स फ्री इलेक्ट्रॉन मास. तो जब हम ये सारे वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन मिलती है 1 ओम मीटर इनवर्स. इट्स अ टिपिकल वैल्यू फॉर सेमीकंडक्टर्स. हालांकि अगर इसको हम कंपेयर करें विद कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है दैट्स वेरी वेरी लार्ज, दैट इज 10 raised to power 7 times the conductivity of semiconductors. बट फिर भी
this conductivity is still sufficient ताकि करंट फ्लो हो सेमीकंडक्टर्स में. Now the question arises, why low conductivity in semiconductors? Semiconductor की conductivity कम क्यों है, and that too by an order of magnitude of 10 raised to power 7. इतनी फर्क है, इतनी डिफरेंस है conductivity of semiconductors and conductivity of metals में. तो इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह है ये, the free electron concentration. In semiconductors it is about 10 raised to power 21. लेकिन अगर हम metals में देखें, एक metal जो है इसकी जो free electron concentration है that is about 10 raised to power 28 per cubic meter. So you can see there is the difference of order of magnitude of 10 raised to power 7. यानी अगर हम free electron density of metal 10 raised to power 28 इसको divide करें free electron density of semiconductors which is 10 raised to power 21, so you will get this 10 raised to power 7. So why semiconductors have low conductivity? It is because semiconductors में free electron concentration काफी कम है as compared to that of metals. तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए भी हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन डिराइव की है, एंड इसको मैंने इक्वेशन 2 से डिनोट किया है. इक्वेशन 2 गिव्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे एप्सिलॉन डिनोट्स द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव साइन इसलिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम टू द राइट अप्लाई करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं they will move opposite to it, तो उनकी जो drift velocity होगी that will be opposite to the electric field. That's why there is a negative sign. यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, मोबाइलिटी. मोबाइलिटी का मतलब है कि जो हम इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलस देते हैं, यानी कि हम एक सेमीकंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसा रिस्पॉन्स देते हैं टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसकी डायरेक्शन है, उसकी स्ट्रेंथ है, तो हमें उसका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स में. वो कितना फास्ट ट्रेवल करते हैं या वो कितना स्लो ट्रेवल करते हैं. तो द मोबाइलिटी इज बेसिकली ए मेजर ऑफ रैपिडिटी or swiftness of motion of electrons in a given electric field. तो मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशो. तो न्यूमरेटर में हम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लेते हैं, और उसमें हम ये साइन प्लस या माइनस नहीं लेते हैं. मोबाइलिटी, in mobility we only talk about magnitude. So mobility will be the ratio of drift velocity divided mobility will be the ratio of drift velocity to electric field. So equation number 2 में अगर हम electric field से divide करें तो we will get E tau n by mn star, and that is equation number 3. So this gives expression for mobility of electrons. तो इसमें हम देखते हैं कि mobility is directly proportional to relaxation time. तो जितना ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स होने के लिए टाइम मिलेगा तो उसकी मोबाइलिटी भी ज्यादा होगी. और हम और एक चीज देखते हैं कि मोबाइलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में, सेमीकंडक्टर में खुद को जितना भारी महसूस करेगा, यानी उसका इफेक्टिव मास जितना ज्यादा होगा, तो उसकी मोबाइलिटी उतनी कम होगी. The longer the lifetime of electron and smaller its mass, higher the mobility.
So now we have got equation number 1, which gives us conductivity of free electrons. We have also got equation number 3, which gives the mobility of free electrons. So let us use this equation number 3 into equation number 1. तो इसमें हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के 2 पावर हैं. सो अगर हम एक पावर अलग रखें, फिर टाउ एन बाई एम एन स्टार है, दैट गिव्स मोबाइलिटी. तो बाकी क्या बचता है? एक तो एन बचता है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का एक पावर बचता है. सो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू ई, और जो बाकी बचता है ई टाउ एन बाई एम एन स्टार, दैट इज द मोबाइलिटी. सो conductivity will be equal to, so that means the conductivity due to free electrons will be equal to n into E into mu n, and that will be our equation number 4. Conductivity, the contribution to conductivity due to electrons only equals the product of free electron concentration into electronic charge into mobility of the free electrons. तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 4 से हम ये इन्फर कर सकते हैं that the conductivity is proportional, directly proportional to the mobility. Obviously, जितने इलेक्ट्रॉन मोबाइल होंगे तो उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी. तो इसका भी हम एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वैल्यू देखें तो n that will be 10 raised to power 21 per cubic meter, और सिग्मा अभी हमने इसका वैल्यू डिटरमाइन किया 1 ओम मीटर इनवर्स, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो है ही 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम. तो इक्वेशन नंबर 4 से हमें मोबाइलिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलती है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. एंड अगेन दिस इज अ टिपिकल वैल्यू फॉर सेमीकंडक्टर्स. तो एनालॉगसली जो इक्वेशन नंबर 4 है, equation number 4 is sigma n is equal to n into E into mu n. This is the contribution to conductivity due to electrons. अब अगर हम एक स्ट्रॉन्गली p टाइप सेमीकंडक्टर कंसीडर करें, यानी कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर उसमें होल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन होल्स की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि वी कैन नेग्लेक्ट the contribution to conductivity due to electrons. तो हम ट्रीट करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं. तो the conductivity will be wholly and solely due to the flow of holes. So I will denote it with sigma and a subscript p. Sigma, it is conductivity. Subscript p means this is contribution due to holes only. So equation number 4 की तरफ देख के हम analogously लिख सकते हैं. equation number 4 में n है which is free electron concentration, तो यहाँ पर हम holes की concentration लिखेंगे small p into holes का चार्ज भी E ही है, और इसी तरह इक्वेशन नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन्स की मोबाइलिटी है, तो यहाँ पर हम मोबाइलिटी लिखेंगे म्यू p, द मोबाइलिटी ऑफ holes. So this will be our equation number 5. तो इक्वेशन नंबर 4 की तरफ देख के हम एनालॉगसली एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फॉर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्गली पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी ऐसा सेमीकंडक्टर उसमें होल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन होल्स की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि वी कैन ऑल टुगेदर नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स.
तो इक्वेशन नंबर 4 की तरफ देख के हम एनालॉगसली लिख सकते हैं सिग्मा पी, दिस इज द कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स ओनली, इक्वल्स इक्वेशन नंबर 4 में n है विच इज फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, तो उसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे होल्स की कंसंट्रेशन p। उसके बाद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीट्यूड ओनली, तो यहाँ पर भी हम चार्ज ऑफ होल्स लिखेंगे। और उसके बाद है म्यू एन विच इज द मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वेशन नंबर 4 में दिस इज मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी जगह हम इक्वेशन नंबर 5 में लिखेंगे मोबाइलिटी ऑफ होल्स, म्यू पी। So that will be our equation number 5. तो इसमें हमने म्यू पी which denotes mobility of holes and p it denotes the hole concentration. Now let us consider the general case, यानी एक ऐसा सेमीकंडक्टर उसमें अब इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं और दोनों की कंसंट्रेशन ऐसी है कि दो में से हम किसी की भी कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो व्हेन वी विल अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो electrons will flow opposite to the electric field and holes will flow in the same direction as that of the electric field. But अगर electrons to the left flow करते हैं तो conventional current electrons के लिए भी to the right ही flow करेगी, और होल्स तो टू द राइट फ्लो होते ही हैं तो उनकी कन्वेंशनल करंट भी टू द राइट ही होगी। तो इसका मतलब है कि द करंट्स ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एडिटिव, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। सो दैट मीन्स जब करंट्स ऐड होंगे तो कंडक्टिविटी भी ऐड होगी। सो नाउ लेट अस ट्रीट द जनरल केस इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रेजेंट। तो जब फील्ड अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो होंगे और होल्स भी फ्लो होंगे, तो जो कंडक्टिविटी है that will be sum of conductivity due to electrons and conductivity due to holes. So conductivity due to electrons, that is n e into mu n, plus conductivity due to holes, that is p into e into mu p. तो अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस पे ध्यान दें, वी कैन टेक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉमन आउट, सो E टाइम्स ब्रैकेट n टाइम्स mu n plus p times mu p. So this is the expression for a semiconductor in general case, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे. So this we will treat as equation number 6. So equation number 6 is the equation we have got as a special case when the substance is in the intrinsic region. यानी कि सेमीकंडक्टर मोर ऑफ इंट्रिंसिक है, यानी कि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर हैं. सो दैट मीन्स n is equal to p. So then equation 6 will become, sigma is equal to E times bracket n into mu n plus, अब यहाँ पे P था ना, होल कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर भी हम n ही लिखेंगे टाइम्स म्यू p. नाउ वी कैन टेक n also common out, so we will get n e into bracket mu n plus mu p. यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि जो कंडक्टिविटी है, अब इसमें कंट्रीब्यूशन है दोनों का, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज ड्यू टू होल्स, राइट? तो क्या दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट? क्या इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कंडक्टिविटी? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बिकॉज दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है. सो n इज सेम फॉर बोथ, E is also same for both, but the mobilities are not same. Electrons are more mobile than holes.
electrons have got more mobility than holes. इसीलिए कंट्रीब्यूशन दोनों की है, but the electrons have large contribution as compared to that given by or contributed by holes. Electrons have the large share. Now let us see how electrical conductivity of semiconductors depends on temperature. और उसके बाद हम एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे of natural log of conductivity versus the reciprocal of temperature. So the semiconductor we will treat it in its intrinsic range, यानी कि the concentration of holes and electrons is equal and equal to n. So this is our equation number 7. Free electrons या holes की concentration ये हमने पिछले lecture में derive की है. So this equation 8 gives us the concentration of intrinsic charge carriers, चाहे फिर वो electrons हो या holes हो. तो actually हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि ये जो सिग्मा है, how it depends on temperature. तो सिग्मा के लिए एक्सप्रेशन है इक्वेशन 7. E does not depend on temperature. तो हमने अब देखना है कि ये जो N है, how it depends on temperature, और ये जो mobilities हैं, how they depend on temperature. तो we will first write their expressions, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों quantities concentration of charge carriers ये कैसे डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, और जो mobilities हैं ये कैसे डिपेंड करते हैं टेम्परेचर्स पे. So equation 8 gives expression for n, the free electron concentration or the holes concentration. तो इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस दो किस्म की है. एक तो है पॉलिनोमियल यानी t raised to power 3/2, और अगर आपको याद हो हमने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि दिस इज वीक डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. सो जो कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस है टेम्परेचर पे वो दो किस्म की है. एक तो है t raised to power 3/2, इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल डिपेंडेंस, एंड इट इज वीक डिपेंडेंस. वेल आप कहेंगे कि t raised to power 3/2 ये तो अच्छी खासी डिपेंडेंस है, तो इसको हम वीक डिपेंडेंस कहते हैं बिकॉज इसी एक्सप्रेशन में एक और डिपेंडेंस है, एंड दैट इज द एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस, and that is the strong dependence. So जो पॉलिनोमियल को हम वीक डिपेंडेंस कहते हैं वो हम कहते हैं एक्चुअली जब इसको हम कंपेयर करते हैं विद द एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस. तो मोबाइलिटीज जो हैं the mobilities vary inversely as 3/2 power of temperature. So mu n it will be proportional to 1/t raised to power 3/2. इस proportionality को हम equality में convert कर सकते हैं. We can write mu n is equal to some proportionality constant, say alpha, into 1/t raised to power 3/2. इस t raised to power 3/2 को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो we will get mu n is equal to alpha times t raised to power -3/2. So this is expression for mobility. Basically ये expression हमें बताती है कि mobility of free electrons temperature पे कैसे depend करती है. Analogously, the mobility of holes that will be also proportional to 1/t raised to power 3/2. इस proportionality को हम equality में convert करेंगे. So we will introduce some other proportionality constants, say beta into 1/t raised to power 3/2. Again यहाँ पे हम t raised to power 3/2 को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो इसका पावर टॉगल होके माइनस बनेगा.
So mu p will be equal to beta times t raised to power minus 3 by 2. So this is the expression for mobility of holes. The sum of the mobilities mu n plus mu p, so that will be mu n, पहले हम उसकी expression लिखेंगे which is alpha times t raised to power minus 3 by 2 plus अब हम mu p के लिए expression लिखेंगे which is beta times t raised to power minus 3 by 2. तो obviously हम इन दो terms में t raised to power minus 3 by 2 common out कर सकते हैं. So we can write mu n plus mu p is equal to पहली टर्म में बचेगा अल्फा, दूसरी टर्म में बचेगा बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा टाइम्स t raised to power minus 3 by 2. So alpha is a constant, beta is a constant, their sum will be also a constant, and suppose the sum of the two constants alpha and beta is gamma. So gamma times t raised to power minus 3 by 2. So this is what? This is mu n plus mu p. Let us call this equation number 9. So now we are done. Equation 7, equation 9, and equation 8. We will use equation 8 and equation 9 into equation 7. Equation 7 gives the conductivity of semiconductor in a general case कि जिसमें electrons भी हैं, holes भी हैं, and that equals En into the sum mu n plus mu p. तो n का जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 8 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो mu n plus mu p है द सम ऑफ मोबाइलिटीज वो हम इक्वेशन नंबर 9 से सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो लेट अस डू इट. सो वी विल गेट सिग्मा इज इक्वल टू E into n का वैल्यू ट्वाइस ब्रैकेट 2 pi kt by h square whole raised to power 3 by 2 into mn star mp star whole raised to power 3 by 4 into exponential power है minus eg by 2 kt. होल्स जो हैं उनको हम कभी p से डिनोट करते हैं, कभी h से डिनोट करते हैं. सो डजंट मैटर. इनटू अब mu n प्लस mu p. वेट जब तक ये जहाज चला जाए. into mu n plus mu p वो हम इक्वेशन नंबर 9 से लाएंगे, and that is gamma times t raised to power 3 by 2. So in the next step I will write this sigma is equal to E into 2 into 2 pi kt by h square whole raised to power 3 by 2 into mn star mp star raised to power 3 by 2 into gamma into t raised to power 3 by 2. यानी कि मैंने पहले टेम्परेचर डिपेंडेंस वो रखी which is polynomial, and then into the exponential dependence e raised to power minus eg by 2 kt. तो ये जो पॉलिनोमियल डिपेंडेंस है I will
denote it with f of capital T. f of capital T मैंने इस सब के लिए यूज किया है. The polynomial dependence of temperature multiplied by exponential function multiplied by polynomial function multiplied by exponential function e raised to power minus eg by 2kt. So ये हमें सिग्मा के लिए एक्सप्रेशन मिलती है. तो जो पॉलिनोमियल डिपेंडेंस थी टेम्परेचर पे, उसको हमने डिनोट किया है विद अ फंक्शन f of t into exponential function. So this is what we have got. We will call this equation number 10. तो इसमें जो पॉलिनोमियल डिपेंडेंस थी टेम्परेचर पे, which is weak dependence, we have denoted that with f of t, and this is weak dependence. weak dependence क्यों है? Because वीक डिपेंडेंस इसलिए है क्योंकि इक्वेशन नंबर 10 में एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस भी है टेम्परेचर पे, एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस. सो दैट मीन्स कि जो ये पॉलिनोमियल डिपेंडेंस है, इसको हम एसेंशियली कांस्टेंट मान सकते हैं, एज इफ कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती ही नहीं है. तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर f of t को हम अब एसेंशियली कांस्टेंट माने, सो दैट मीन्स के जो सिग्मा है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली, और यहाँ पे टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता कंडक्टिविटी डिक्रीज होती, लेकिन पावर के साथ माइनस है, तो इसका असर ये होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर द कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस. सो यहां से हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या मिलती है? द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर. ये पॉइंट लिखने लायक है और याद रखने लायक है कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, फिर चाहे वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, एन टाइप हो या पी टाइप हो, द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस exponentially with temperature. So we have got equation 10, which gives us the conductivity of semiconductors as a product of a function which depends weakly on temperature, जिसको हम essentially constant treat कर सकते हैं, into a factor which depends exponentially on temperature. Let us take natural log on both sides. So ln of sigma is equal to ln of right hand side. तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि log of x into y, we can write this as log of x plus log of y. तो दो टर्म्स जो यहाँ पे है, एक टर्म हम f of t लेंगे और दूसरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे. So we can write this as natural log of f of t plus natural log of exponential function minus eg by 2kt. Now since f of t is a constant, तो इसका natural log भी constant होगा, तो इसको हम denote करेंगे with c bracket में t. So it is a function of temperature but essentially constant. Plus natural log और exponential function एक दूसरे के inverse हैं, they will cancel or nullify each other's effect.
तो वहां पे हमें मिलेगा माइनस Eg/2kT। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये माइनस Eg/2kT पहले लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बाद में लिखेंगे। तो वी विल गेट ln ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू माइनस Eg/2k, और डिवीजन में है टेम्परेचर, तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 1/T, देन प्लस हम लिखेंगे ये कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अब अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करना चाहें तो वी विल प्लॉट दिस नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा अलोंग y एक्सिस। ये जो रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर है इसको हम प्लॉट करेंगे अलोंग x एक्सिस, तो वी गेट एन इक्वेशन y is equal to this minus Eg/2k, it's a constant, say it is m, into reciprocal of temperature, that is x, plus c of t, it is a function that depends weakly on temperature that much, we can treat it as constant. So we get equation y is equal to mx plus c, and that is equation of a straight line. So if we plot a graph of ln of sigma, natural log of sigma, against the reciprocal of temperature, we will get a straight line, and that will not pass through origin, because यहाँ पे कुछ ना कुछ y intercept जरूर होगा। और m that denotes the slope, so m equals minus Eg/2k. So the slope equals minus Eg/2k. So this is the equation. This we will plot along y axis, this we will plot along x axis. So this is the graph that we get a straight line, and this graph is a straight line, and it is slope equals minus Eg/2k. तो यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इन द अर्ली डेज ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, actually this was the method to determine the band gap. चूंकि हमें स्लोप मिला, तो स्लोप हम ग्राफ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द स्लोप जो कि हमें ग्राफ से मिलेगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, इक्वल्स माइनस Eg/2k। तो यहां से हम बैंड गैप के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। बैंड गैप को अपनी जगह पे रखेंगे, ट्वाइस के स्लोप को मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल गेट 2k इंटू स्लोप, और माइनस साइन आएगा। तो 2 तो पता ही है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका वैल्यू भी पता है, और स्लोप का जो वैल्यू है वो हमें ग्राफ से मिलेगा। तो हमें बैंड गैप के लिए एक्सप्रेशन मिल जाती थी। तो इन द अर्ली डेज ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एक्चुअली दिस ग्राफ वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप, लेकिन with advancement in technology, now we determine the value of band gap with optical methods.